Hello students, as you wanted a revision for thermo EMF and thermocouple, so here I am starting from Seebeck effect. Thermo EMF means thermoelectric electromotive force. Thermoelectric electromotive force. Now there are few metals available in this nature which change their internal property according to the change in temperature. The thermoelectric electromotive force is the result of the experiment which was performed by Thomson John Seebeck. Thomson John Seebeck states that he had stated that when two different conductors are joined to form a circuit, again I am repeating, if two different conductors are joined to form a circuit and the two junctions are held at the different temperatures, then an EMF is developed, electromotive force is developed, which results in the flow of electric current through the circuit. So this is the statement given by Thomson John Seebeck. So this you have to learn. When two different conductors are joined to form a circuit and the two junctions are held at the different temperatures, then an EMF is developed. EMF at the two junctions, across the two junctions is developed, which results in the flow of electric current through the circuit. And the magnitude of thermoelectric EMF depends on the nature of two metals. Not all metals show this nature. Only few metals show this nature, and those metals are arranged in this series. This is the series. Only these are the metals which are showing the thermoelectric effect if we select any two of them. In this series, if we select any two conductors or metals and join them at the two ends, then they follow the Seebeck effect. Two metals, iron and copper. In this diagram, two metals, iron and copper is taken. Here, the broad line, the dark one is a iron wire, and at below side this is the copper wire. Okay, and this is the junction where the iron and copper are welded together. So this is the junction A and this one is the another junction B. Got my point? Actually both are the same dimensions, maybe variable dimensions wires. Okay, but for better understanding, this iron wire has been made wider compared to this copper wire. A is the one joining point of iron and copper, and B is the another joining point, another junction of iron and copper. And T1 is the temperature of junction A and T2 is the temperature of junction B. And as here it is indicated, T2 is lesser than T1. The lesser temperature junction is known as cold junction and the higher temperature junction is known as hot junction. Now here the circle is having an alphabet capital G. This capital G indicates galvanometer. Galvanometer is a current measuring instrument. As here in this diagram you are watching that there is no source, no electric source, no power source. But still, this galvanometer shows deflection if T1 and T2 are at different temperatures. Galvanometer is showing deflection. It means that in this closed path, there is a current flow. And that's why it is known as induced EMF. Here there is no power source, still
the current is flowing through the galvanometer. Galvanometer is indicating the current conduction. Okay, so without source there is an induction of EMF. Now what is electromotive force? How current can flow from one point to another without any source, but there is an availability of EMF at these 2 points, point A and point B. If current is flowing from this direction, whatever direction, here it is clockwise direction is shown in the diagram. So from B point to BA in the clockwise direction current is flowing. It means that the potential at temperature T2 is greater than potential at temperature T1. B से A की तरफ करंट जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है B में और A में कम है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, किसी सोर्स के लगाए बगैर कैसे क्रिएट हुआ, वो इन दो मेटल आयरन और कॉपर जो कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, ये उसका रिजल्ट है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जनरेट हुआ। T1 जो है अधिक टेम्परेचर में है और T2 जो है लोअर टेम्परेचर में है। अगर A और B दोनों सेम टेम्परेचर में रहेंगे तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट डिफ्लेक्शन नहीं होगा और ये दोनों पॉइंट, दोनों जंक्शन के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस या कोई इंडक्शन नहीं होगा EMF का। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए ये रूल है कि हॉट जंक्शन में, यहाँ पे टेम्परेचर T1 ग्रेटर टेम्परेचर में है, तो हॉट जंक्शन में करंट जो है हमेशा कौन से मटेरियल की तरफ जाएगा, वो ये सीरीज डिपेंड करता है। इस सीरीज में ये रैंडमली नहीं रखा हुआ है, ये सीरीज जो है थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किए हुए हैं मेटल्स को। इस सीरीज में जो मेटल्स पहले आ रहे हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है बनिस्बत की बाद वाले से। अब यहाँ इस सीरीज में देखिए कॉपर पहले है और Fe आयरन बाद में है, यहाँ पर है। तो क्या है रूल करंट डायरेक्शन का कि हॉट जंक्शन में करंट जो है पहले अपीयर होने वाले, सीरीज में पहले अपीयर जो हो रहा है मेटल, उससे बाद में जो मेटल अपीयर हो रहा है उसकी तरफ जाएगा। तो चूंकि Cu पहले आता है तो इस हॉट जंक्शन में कॉपर से आयरन की तरफ में करंट जाएगा और इसी से ये करंट डायरेक्शन तय होता है। ठीक है, और जस्ट अगर उल्टा कर दें हम कि अगर हम T1 को लोअर टेम्परेचर पे कर दें और T2 को हायर टेम्परेचर पे कर दें तो ये करंट डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। सीबेक इफेक्ट इज रिवर्सिबल। ठीक है, अगर T2 हायर टेम्परेचर में होगा तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द थिंग दैट विदाउट एनी इलेक्ट्रिक सोर्स द करंट कैन कंडक्ट इन अ सर्किट विच इज made by joining two metallic wires. ओके, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के केस में देखा होगा, वहां भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे थे। वहां भी सेकेंडरी वाइंडिंग था और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोड कनेक्ट करते थे, तो सेकेंडरी वाला जो सर्किट में कोई सोर्स नहीं कनेक्ट था, लेकिन सेम मैग्नेटिक कोर से कनेक्ट होने की वजह से प्राइमरी से जो वोल्टेज जो है सेकेंडरी वाले वाइंडिंग में ऑटोमेटिकली इंड्यूस होता था। ठीक है, तो वो वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन था और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, ये थर्मो इलेक्ट्रिक इंडक्शन है। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में, दो जंक्शन के बीच में क्या ईएमएफ जनरेट हुआ है और इसी पर बेस्ड वर्किंग है थर्मोकपल का। अब ये जो थ्योरेटिकल डायग्राम अभी हमने देखा, जब हम इसको प्रैक्टिकली डिजाइन करते हैं तो वो किस तरीके से बनता है। इट यूजेस फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ टाइप ऑफ सेंसर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर
in the form of an electric current or the EMF. हम थर्मोकपल का वर्किंग करने के लिए हम या तो EMF मेजर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर यूज करके, या गैल्वेनोमीटर यूज करके इलेक्ट्रिक करंट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर सकते हैं। आप लोग ये बहुत अच्छे से जानिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सीबेक इफेक्ट का जो फेनोमेना है, ये इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए नहीं है। ये क्यों नहीं है? ये केवल मिली वोल्ट या उससे भी कम थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो वोल्ट, वेरी लिटिल अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस या करंट जनरेट करता है, जिससे जनरेशन नहीं किया जा सकता, उसको इतना एम्पलीफाई नहीं किया जा सकता कि इलेक्ट्रिक जनरेशन होने लगे। डू यू अंडरस्टैंड? ये सिर्फ सेंसिंग के लिए, इसको हम डिस्प्ले करने के लिए, टेम्परेचर को सेंस करके, उस करंट को सेंस करके, उस वोल्टेज को, ईएमएफ को सेंस करके हम केवल किसी पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करा सकते हैं या डिजिटल मीटर में डिस्प्ले करा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मीटर में डिस्प्ले कराने के लिए भी मिली एम्पियर का करंट सफिशिएंट होता है। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल डायग्राम देखते हैं। प्रैक्टिकल डायग्राम में ये जरा सा चेंजेस आते हैं इस तरीके से। नाउ हियर द अदर टू मटेरियल्स आर टेकन, दिस इज आयरन, रेड वन इज, एंड ब्लू है कॉन्स्टेंटन का। अब देखिए ये जो एक जंक्शन पॉइंट है P, इसको मेजरमेंट पॉइंट कहते हैं। ये हॉट जंक्शन होता है, जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है वो T1 टेम्परेचर है। चूंकि हम EMF मेजर करेंगे, तो EMF मेजर करने के लिए हम किसी दो पॉइंट के अक्रॉस लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सेकेंड वाला जो पॉइंट है, दोनों का ही, आयरन लीड और कॉन्स्टेंटन लीड का, इसको हम ज्वाइन डायरेक्टली न करके हम इसको ज्वाइन करते हैं एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के जरिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये करंट मेजर करने के लिए, दिस इज द एरो मार्क फॉर द करंट मेजरमेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड जंक्शन बॉक्स लिखा है, ये एक्चुअली में पूरा जो सेटअप होता है, ये थर्मोकपल ये बिल्कुल एक रॉड की तरह से दिखता है, जिसका टिप या बॉटम जो है हम बॉइलिंग वाटर में डालते हैं या बॉइलिंग मेटल में डालते हैं, और दूसरा वाला ये रूम टेम्परेचर पे रहता है। तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए या कुछ कैलिब्रेशन सर्किट के जरिए ये जो रूम टेम्परेचर है, T2 इज द रूम टेम्परेचर को हम एज अ रेफरेंस टेम्परेचर रहते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पे ये कैलिब्रेशन करके इसका 0 पॉइंट को सेट करते हैं। आइडियल केस में कोल्ड जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम रेफरेंस के लिए बर्फ उठाएं और बर्फ में हम ये दोनों टिप को डुबो के रखें और वो 0 ही रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक रॉड की तरह से होता है, उसका टिप को डुबोते हैं किसी बॉइलिंग कंटेनर में, और जबकि दूसरा वाला जो रहता है ये रूम टेम्परेचर पे रहता है, दूसरा एंड जो है। और ये जो है, ये जो कॉपर लीड बोला, ये एक लॉन्ग पूरा वायर है, लंबा, मे बी 5 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग, लाइक दैट। और ये आपका मीटर स्केल कहीं और डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों T2 जो दोनों एंड है, ये सेम टेम्परेचर T2 कोल्ड जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर T1 और T2 दोनों सेम टेम्परेचर में, माने दोनों रूम टेम्परेचर में है, तो यहाँ पर मूविंग आयरन में यहाँ पे करंट जो है वो 0 शो करेगा। लेकिन अगर T1 को हमने किसी बॉइलिंग कंटेनर में डाल दिया, तो T1 और T2 में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से अब ये मूविंग आयरन जो है क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो कि कैलिब्रेटेड रहता है। चूंकि ये गैल्वेनोमीटर का है या करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो करंट मेजर करता है, बट इसमें जो स्केल है वो टेम्परेचर का रीडिंग शो करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली, एंड द मैथमेटिकल रिलेशन दैट इफ वी मेजर not using galvanometer, not using that moving iron instrument, if we directly measure the EMF, then the EMF formula is A del theta. In different book different indication is there, so A and B are constants, A del theta plus B del theta square, where del theta is the temperature difference between the hot thermocouple junction and reference junction, and A and B are constants. So here you can see that multimeter, potentiometer and current amplifying devices, that
amplifier with output devices that can be used for measurement of